A very good evening to all. So welcome to my YouTube channel Inspire Pharma. आज हम बात करने वाले एंटी डिप्रेसेंट ड्रग. As the name suggests, these are the drugs which are used in the treatment of depressions. They are used against the depression. डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिलाइव करने के लिए, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट करने के लिए हम इन ड्रग्स का यूसेज करते हैं. ओके, सो हम आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. क्लियर. सबसे पहले बात करते हैं कि what are the actually the symptoms of depression. They are the number of symptoms that happens in the depression patient. The certain symptoms that is intense feeling of sadness. The first of all symptom क्या होता है कि पेशेंट होता है वो काफी सैड फील करता है, उसके अंदर काफी इंटेंस फीलिंग रहती है सैडनेस वाली. द सेकंड इज होपलेसनेस एंड डिस्पेयर. द काइंड ऑफ कंडीशन इन विच इन दिस पर्सन होता है काफी होपलेस फील करता है. वी इज डज नॉट हैविंग द एनी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थॉट्स. He is always having the certain negative thinking related to the various natural events and various other kind of events. Okay, the another one of the another symptom of depression is inability to experience pleasure in usual pleasurable activities. So this is the another symptoms that happens in the depression patient. Patient जो activities में वो पहले enjoy करता था, suppose अगर वो music को enjoy करता था before going into the depression, but when he is in the depression he is unable to find any kind of an enjoy in those kind of an activities. So this is the one of the another symptom of depression. The one of the a third symptom of depression is change in the sleep pattern. So this is the another symptom. Pattern sleep में कैसे change होगा? या तो person को excessive sleep आएगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी, या तो वो insomnia होगा या तो excessive sleep condition में होगा. So this can be the one of the symptom of the depression. The another symptoms that can be happen to the depression patient is suicidal thoughts. उस patient को number of times उसको number of small conditions में भी उसको suicidal thoughts आने लगते हैं. उसको ऐसा टेंडेंसी रहता है कि वो खुद अभी सुसाइड कर लेगा. सो दैट्स persistent suicidal thoughts is the one of the another symptom of depression patient. Coming to the mania. Mania is a bipolar kind of a disorder which is slightly different from the depression. Mania is basically characterized by the various symptoms like enthusiasm. Patient होता है वो अचानक काफी जोश में रहता है, उसमें एनर्जी काफी हाई रहती है at certain particular period of her life. ओके, रैपिड थॉट एंड द स्पीच पैटर्न. वो काफी तेज तेज बोलता है, उसको नंबर ऑफ थॉट्स एक सिंगल टाइम में आने लगते हैं. सो रैपिड थॉट एंड द स्पीच पैटर्न, या तो वो ऐसा हो कि वो तेज बोलेगा और या वो बोलते समय थोड़ा थतलाएगा जिससे हम बोलते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ मैनियम. उसके बाद द थर्ड सिम्टम दैट इज ऑफ द मैनिया पेशेंट इज एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्पेयर्ड जजमेंट. मतलब उस पर्सन में काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा एंड वो पर्सन जो होगा वो कुछ चीजों में प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाएगा. सो दिस आर द सिम्टम ऑफ मैनिया विच आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द डिप्रेशन. सो मैनिया एक ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें पेशेंट अचानक से डिप्रेस मूड में चला जाता है और अचानक से एक्सेसिव एनर्जी वाले जोन में आ जाता है. सो दिस आर द सर्टेन सिम्टम्स ऑफ mania. Okay, talking about the depression, the cause of a depression, usually we know that because of a number of number of personal reason की वजह से भी depression हो सकता है. but अगर हम medical language में बात करें, depression में भी the secondary to the certain another problems. मतलब secondary मतलब अगर आप पहले से कुछ किसी disease से suffer कर रहे हैं तो आपको depression होने के chances रहते हैं. जैसे suppose यहाँ पे उन्होंने लिखा है organic problems like hypothyroidism, dementia and anemia. अगर कोई पर्सन और अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रहा है, अब तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है. इट इज अ काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन और इट इज अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स डिक्रीज इन द पेशेंट. हाइपो मतलब डिक्रीज, लो लेवल. सो अगर किसी पेशेंट में थायराइड हार्मोन्स का लेवल लेस होता है, उस पेशेंट में डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं. सेकेंड इज डेमेंशिया. डेमेंशिया इज बेसिकली द लॉस ऑफ मेमोरी which is the one of the symptom of Alzheimer patient. So अगर किसी पेशेंट में लॉस ऑफ मेमोरी काइंड ऑफ अ सिम्टम है तो अगेन उसको भी डिप्रेशन हो सकता है. सिमिलरली अनीमिया.
विच इज अ ब्लड डिसऑर्डर, आई थिंक सभी को पता होगा, जिससे पेशेंट की बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है. सो दिस इज द सेकेंडरी टू दिस ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स. Similarly, it is also secondary to the certain psychiatric issues like schizophrenia, drug abuse, and anxiety disorder. Schizophrenia का मतलब क्या होता है? It is a kind of a condition, it is a kind of a psychological disorder which is characterized by the certain symptom like delusions, hallucinations. अगर मैं थोड़ा मेडिकल और डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट्स को कुछ ऐसी साउंड्स सुनने लगते हैं जो एक्चुअल में नहीं होती, ऐसी आवाजें सुनने लगती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे ऐसी चीजें दिखने लग पड़ती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती, इसको बोल सकते हैं फॉल्स बिलीव्स. So that's what is a schizophrenia. Patients usually they are more susceptible to get suffer from the depression. One of the another secondary cause is drug abuse. अगर कोई पेशेंट बहुत सारे ड्रग्स लेने के एडिक्टेड है, बहुत सारे अदर ड्रग्स ले रहा है, ओपियोइड्स, मॉर्फिन, इस तरह के ड्रग्स वो कंटिन्यूसली लेता है, वो उस ड्रग को एडिक्टेड है, तो दोज कंडीशन वी कैन आल्सो गेट सफर फ्रॉम द डिप्रेशन. Okay, third condition is anxiety disorder. Yes, if the person is having the certain kind of anxiety disorders, he is also very susceptible to get suffer from the depression. Okay, the next one of the cause is use of depressant drugs such as alcohol. Okay, sorry. So अगर कोई पेशेंट जो है वो कुछ ड्रग्स ले रहा है, he is taking the alcohol, कंज्यूम करता है on the daily basis, in that case he can also suffer from the depression. So depression may be the secondary to these all organic problems. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, डिमेंशिया हो, सिज्नोफीनिया हो, तो काफी चांसेस रहते हैं उसके डिप्रेशन में जाने के. ओके, नो डिप्रेशन इन द एल्डरली पेशेंट. हमें पता है कि द नंबर ऑफ अदर वेरियस डिसऑर्डर, जिस जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है वो उस डिसऑर्डर के लिए उसकी जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. बट डिप्रेशन में थोड़ा सा केस होता है वो अलग होता है. इट इज अ नॉट नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग. ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपको आपको एल्डर पीपल में ही डिप्रेशन के केसेस ज्यादा होते हैं. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. इट इज अ नॉट द नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग. Okay, underdiagnosed and misdiagnosed in the elderly. Sometime underdiagnosed किया जाता है डिप्रेशन को. जैसे कोई पेशेंट में कुछ एंजाइटी के सिम्टम है, वो सैड रहता है, वो अलग अलग रहता है, आइसोलेटेड रहता है, उस कंडीशन में कंप्लीटली डायग्नोसिस नहीं किया जाता. ऐसे बोल दिया जाता है कि कुछ इशू होगा, कुछ अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, बट इट मे हैपन दैट ही इज इन द severe depression condition. Okay, sometimes misdiagnosed भी करते हैं हम. 10 to 50% of elderly have clinically significant depression. Okay, 10 to 15% केसेस में एल्डर लोगों में डिप्रेशन सिम्टम्स पाए जाते हैं. ड्रग रिस्पॉन्सिवनेस सिमिलर टू द यंगर पेशेंट. अगर जो ड्रग्स हम एल्डर पेशेंट को देते हैं वही ड्रग जो हम यंगर पेशेंट को भी दे सकते हैं, एंड जो रिस्पॉन्स बॉडी करती है वो दोनों की बॉडी सेम तरह ही जो ड्रग्स को रिस्पॉन्स करती है जो ड्रग्स डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं. ओके, सो बाकी नेक्स्ट जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. तो अभी तक यहाँ तक हमने क्या देखा, डिप्रेशन होता क्या है. We have discussed that intense feeling of sadness, intense feeling of hopelessness, suicidal patterns, suicidal thoughts, changes in the sleep pattern and changes in the hunger pattern में भी काफी changes आते हैं. Loss of appetite हो सकता है या excessive भूख भी लग सकती है. उसके बाद mania, that is a slightly different from the depression. mania में कुछ और symptoms होते हैं. ठीक है, rapid thought, rapid speech pattern, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब रहता है. ठीक है, डिप्रेशन में भी और सेकेंडरी टू दिस प्रॉब्लम एल्डरली पेशेंट में ऐसा रहता है. ठीक है, थैंक यू. सो बाकी किस तरह एंटी डिप्रेसेंट ड्रग काम करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.